अनीमिया हमारी सोसाइटी की, स्पेशली पंजाब की, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली क्या होता है कि हर ह्यूमन बींग्स में 4-5 लीटर के आसपास ब्लड होता है और हीमोग्लोबिन जब हमारा कम हो जाता है तो बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि सारे ऑर्गन्स को प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती है और उनकी फंक्शनिंग जो है अफेक्ट हो जाती है। डाइट प्रॉपर ना होने की वजह से कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं फीमेल्स में, वैसी पीरियड्स रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से उनमें अनीमिया हो जाता है। तो अनीमिया हो जाने की वजह से सबसे पहले तो क्या होता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो जाती है, पेल होता है, घबराहट होने लग जाती है, कमज़ोरी आ जाती है, उसको सांस चढ़ने लग जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं। अभी हम जो कैंपेन कर रहे हैं उसमें हम स्कूल्स में जा रहे हैं और सारी गर्ल्स को देख रहे हैं और जो हम ब्लड चेक करवाते हैं मोस्टली जो गर्ल्स हैं उनका जो HB है वो अराउंड 8 है, विच इज़ टू लेस। अगर आप इसी एज में इतने कम HB के साथ चल रहे हो तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। लेकिन कल को जब आपकी शादी हो जानी है तो क्या आप सोचते हो कि आप जब खुद ही ठीक नहीं हो तो क्या आप एक हेल्दी बेबी को बर्थ दे सकते हो। तो इसके लिए जो हम कर रहे हैं, हम फ्री मेडिसिन्स दे रहे हैं और उनको डाइट के बारे में, इवन ड्यूरिंग कैंपेन डाइट भी जो जिससे HB बढ़ता है, इम्प्रूव होता है, वो सारी चीज़ें भी हम उनको गाइड करने की भी कोशिश करते हैं और जो प्रोवाइड कर सकते हैं वो प्रोवाइड भी करते हैं। और एक जो मेजर प्रॉब्लम मैं अपनी डे टू डे उसमें देख रही हूँ वो ये है कि फीमेल्स अब वर्किंग हैं, उनके पास अपने पास टाइम नहीं है, करियर ओरिएंटेड है और उस चक्कर में दे टू वांट कि कुछ भी पैक्ड आ जाए, उनको बनाना ही ना पड़े क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। तो डेफिनेटली बच्चों को भी वैसी हैबिट्स पड़ जाती हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं ਹਾਂ ਜੈਸਮਾ ਸਿੰਘ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਚੇਂਜ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਿਕਾ ਸੂਰੀ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਖਾਤਿਰਦਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਨ ਥਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਖਾਣਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ? ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਲਚੇ ਬੜੇ ਹੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੀਗੇ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਖਾ ਕੇ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਯੂ ਲਾਈਕਡ ਇਟਸ ਵੀ ਲਵਡ ਇਟ ਮੈਮ। ਗੁੱਡ। ਤੇ ਮੈਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਡੀਅנס ਲਈ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। हाँ जी, मैं राना हॉस्पिटल सरहंद, राना पाइल्स हॉस्पिटल MD हाँ इत्थों दी डॉक्टर दीपिका सूरी। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ 22 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਔਰ ਲਿਮਕਾ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਜ਼ਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਸ ਲਾਸਟ 22 ਇਅਰਸ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫੀਮੇਲਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਪਸ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਲੇजेस ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਫੀਮੇਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਅਰ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਪਾਸ ਔਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੰਗ ਗਰਲਸ ਨੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 9th ਕਲਾਸ ਔਨਵਰਡਸ 9th to 12, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਰਲ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੇਜ਼ਿਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਫਿਰ ਥਰੂ ਆਊਟ ਲਾਈਫ ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ बड़ी अच्छी लेवल दी सोसाइटी जड़ी होए उन्होंने कैरी फॉरवर्ड कर पाए। एब्सोल्युटली। यस। तो मैम जैसे आपने कहा कि आप गाइडेंस देते हैं अनीमिया के ऊपर, तो आप हमारे दर्शकों के साथ भी शेयर करिए कि अनीमिया क्या है
अनीमिया के सिम्टम्स क्या हैं और अनीमिया से रिलेटेड हर प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए। अगर हम एक यंग लड़की की भी बात करते हैं या फिर हम बड़ी मतलब एजड फीमेल्स की बात करते हैं, तो ये बहुत सुनने में आता है कि अनीमिया मेजरली न्यूट्रिशन का जब मैलफॉर्मेशन होता है तो उसकी वजह से अनीमिया होता है। तो आप मैम इस पे थोड़ा सा हमें बताइए। अनीमिया हमारी सोसाइटी की, स्पेशली पंजाब की, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली क्या होता है कि हर ह्यूमन बींग्स में 4-5 लीटर के आसपास ब्लड होता है और हीमोग्लोबिन जब हमारा कम हो जाता है तो वो बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि सारे ऑर्गन्स को प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती है और उनकी फंक्शनिंग्स जो है अफेक्ट हो जाती है। तो जैसा आपको पता ही है कि हमारी डाइट प्रॉपर ना होने की वजह से कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं फीमेल्स में, वैसे ही पीरियड्स रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से उनमें अनीमिया हो जाता है। तो अनीमिया हो जाने की वजह से सबसे पहले तो क्या होता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो जाती है, पेल होता है, घबराहट होने लग जाती है, कमज़ोरी आ जाती है, उसको सांस चढ़ने लग जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं। तो आप एज सच तो एक्चुअली तो अभी कोई परफेक्ट है ही नहीं है। आप बोलोगे किसी में 10-12 ग्राम हो तो बहुत ही कम है, एक्चुअली होना 12 चाहिए पर होता नहीं है, अराउंड 10 और 10 से भी कम। अभी हम जो कैंपेन कर रहे हैं उसमें हम स्कूल्स में जा रहे हैं और सारी गर्ल्स को देख रहे हैं और जो हम ब्लड चेक करवाते हैं मोस्टली जो गर्ल्स हैं उनका जो HB है वो अराउंड 8 है, विच इज़ टू लेस। अगर आप इसी एज में इतने कम HB के साथ चल रहे हो तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट जब आप कल को आपकी मैरिज होगी, आपकी अभी डाइट अच्छी नहीं है, अभी आपकी ग्रोइंग एज है, आप अपनी डाइट से अपनी सारी वीकनेसेस को क्योर कर सकते हो, लेकिन कल को जब आपकी शादी हो जानी है तो क्या आप सोचते हो कि आप जब खुद ही ठीक नहीं हो तो क्या आप एक हेल्दी बेबी को बर्थ दे सकते हो? नो। तो इसीलिए आजकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। डाइट अच्छी नहीं है, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस लेवल्स और जंक फूड बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है और इस वजह से उनमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वीकनेस आ रही है। फीमेल को देख के ही पता चल जाता है। अभी जस्ट मैंने कल ही एक पेशेंट देखा, शी इज़ 6.5 ग्राम्स, वो स्कूल में ही डायग्नोज हो रही थी और उसके सारे सिम्टम्स हैं, वो फैमिली में बता भी रही है बट नो वन इज़ अवेयर और कोई उसको डॉक्टर के पास नहीं लेके जा रहा। तो इसके लिए जो हम कर रहे हैं, हम फ्री मेडिसिन्स दे रहे हैं और उनको डाइट के बारे में, इवन ड्यूरिंग कैंपेन डाइट भी जो जिससे HB बढ़ता है, इम्प्रूव होता है, वो सारी चीज़ें भी हम उनको गाइड करने की भी कोशिश करते हैं और जो प्रोवाइड कर सकते हैं वो प्रोवाइड भी करते हैं। और वही पेशेंट्स फिर हॉस्पिटल में आके उनकी फ्री कंसल्टेशन होती है और जो बेस्ट हम हेल्प कर सकते हैं दैट वी डू। ग्रेट। तो मैम आप थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को भी गाइड कीजिए, मदर्स स्पेशली हमारी जो ऑडियंस है, बहुत सारी मदर्स हैं जो आपको आज सुन रही हैं, तो आप थोड़ा गाइड कीजिए कि एज अ मदर अपनी बेटियों के लिए मदर्स को क्या बेसिक से बेसिक न्यूट्रिशन या डाइट देना चाहिए जो बेसिकली उनका HB बढ़ाए या उनकी ओवरऑल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा उसको हेल्प करे अच्छी ग्रोथ के लिए। उसके लिए सबसे पहले तो जो हमारी किचन है वो ही बहुत एक रिच सोर्स है। Absolutely. अगर कोई भी फीमेल अच्छे से खाना प्रिपेयर करती है और बच्चों को गाइड करती है, शुरू से ही हम उनको जंक फूड से अगर हम उनको अवेयर करते हैं कि आपको इसको लेना है। हमारे टाइम में तो ये ऑप्शंस अवेलेबल ही नहीं थी, इतना जंक फूड, इतनी सारी ऑप्शंस नहीं थी, तो हम लोग वो नहीं इतना उसको अवेल करते थे। लेकिन आजकल तो अब है तो हम बच्चे तो बच्चे ही हैं ना, उनके सामने 50 चीज़ें पड़े होंगी तो दे विल लव टू हैव। आजकल पिज़्ज़ा पास्ता सबको अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम उनको ये गाइड करते हैं कि यू कैन टेक इट वंस इन ए ब्लू मून, आप कभी लो, नो इश्यूज, बट नॉट ऑन रेगुलर बेसिस। और एक जो मेजर प्रॉब्लम मैं अपनी डे टू डे उसमें देख रही हूँ वो ये है कि फीमेल्स अब वर्किंग हैं, उनके पास अपने पास टाइम नहीं है, करियर ओरिएंटेड है और उस चक्कर में दे टू वांट कि कुछ भी पैक्ड आ जाए, पैक्ड आ जाए, उनको बनाना ही ना पड़े क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। तो डेफिनेटली बच्चों को भी वैसी हैबिट्स पड़ जाती हैं। तो सबसे पहले तो हमें ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सैलेड्स, हमारी किचन में काले चने होते हैं, उसका सूप इज़ वेरी गुड। आपको चीनी बंद कर देनी चाहिए, चीनी की जगह पे गुड़ वाली शक्कर, दैट इज़ रिच सोर्स ऑफ आयरन। अगर आप ये करते हो, अपनी किचन में लोहे की कढ़ाई रखते हो, उसमें आप अपनी सारी जो हम ड्राई वेजिटेबल्स बनाते हैं आप वो बनाओ, बस उससे आयरन मिलेगा। और अगर आप उस पे उसके बाद लेमन जूस डाल लोगे तो दैट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन C, तो आयरन की एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी हो जाती है।
ये आप सारा करो, तो इससे मतलब ही नहीं है कि आपका HB इम्प्रूव ना हो। Right. हाँ, ये अलग बात है, कोई जेनेटिक्स की प्रॉब्लम हो या कोई मेडिसिन का वैसे इशू, जैसे किसी को फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है, किसी 40+ वाली फीमेल को फाइब्रॉइड्स की है, उसको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, पीरियड्स की प्रॉब्लम है, तो दैट इज़ अ डिफरेंट इशू, उसको मेडिकली ट्रीट करना पड़ता है। Right. बट अदरवाइज अगर हम अपनी डाइट बहुत अच्छी कर लें तो वी कैन इम्प्रूव आर। तो एटलीस्ट हमारी जो बेसिक हेल्थ है या वेलबींग है, Yes, we yes, can yes. take care of that. I think balanced diet and with good exercises Yes, and definitely. workouts, we बिल्कुल can really improve our health. बिल्कुल बिल्कुल वो तो हम कर मैम सकते ये हैं। तो रही अनीमिया की बात। तो अगर हम एक फीमेल पर्सनल हाइजीन की बात करते हैं, तो मैंने सुना है कि आप इस पर भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और बहुत अच्छे कैंपेन्स रन करते हैं, जिसमें बेसिकली जब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल एक फीमेल का स्टार्ट होता है, तो उस समय उस लड़की को वो एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना, नॉलेज देना बहुत ज़रूरी होता है, जो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से दे रहे हैं। तो आप उसके बारे में भी हमें जी कुछ हाँ, बताइए। ये भी हमने एक कैंपेन प्रीवियसली करा था, Yeah. उसके लिए भी हम स्कूल्स के जो विलेजेस के स्कूल्स थे ना, वहाँ पे हम लोग गए थे, तो वहाँ पे 8th क्लास ऑनवर्ड्स हमने गर्ल्स को गाइड किया था। Yeah. सैनिटरी नैपकिन्स भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे और उनको बताया था। उसमें हमने एक और चीज़ की थी कि जो प्लास्टिक के नैपकिन्स हैं, इट शुड बी अवॉइडेड। आजकल सब अवेयर हैं, बच्चों को भी सबको पता है कि प्लास्टिक एक हमारे पोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। Absolutely. तो उसके लिए जो प्योर ऑर्गेनिक हैं, कॉटन के पैड्स हैं, वो मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन क्या है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट का टाइम है, तो वो उन चीज़ों का इतना ज़्यादा हम एडवर्टीज कर ही नहीं पा रहे, तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा। Absolutely. इसलिए उस पे हम उनको पूरा गाइड करते हैं, उनकी डाइट कैसे होनी चाहिए, उनका हाइजीन कैसा होना चाहिए, वो सारी विलेजेस में जाके कैंपेन करके हम उनको वो सारा गाइड करते हैं और उसके अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं, क्योंकि I'm आजकल sure. गर्ल्स समझती भी हैं, सुनती भी हैं। तो अभी हम स्कूल्स में देखते हैं कि ये नहीं है कि आप गए, आपने लेक्चर दिया और उन्होंने आधा सुना आधा नहीं सुना, Yes. दे रिस्पॉन्ड। Yes, right. मैम आपने मुझसे एक बात शेयर की थी कि आजकल रेक्टल कैंसर भी बहुत इन है। Yes. मतलब बहुत न्यूज़ आती हैं कि आई एवरी डे आई स्पीक ऑन कैंसर्स, आई इंटरव्यू लॉट ऑफ डॉक्टर्स, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव हर्ड अबाउट रेक्टल कैंसर, सो आई वांट टू नो अबाउट दैट। डेफिनेटली आई लव टू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। फीमेल्स में पाइल्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज़ ए कॉज फॉर दिस डिजीज़। और पेशेंट्स ड्यू टू हेजिटेशन घर बैठे रहते हैं, ब्लीडिंग हुई, पेन हुई, तो वो सोचते हैं कि बस पाइल्स है, केमिस्ट के पास गए, वहाँ से मेडिसिन ली या किसी भी डॉक्टर के पास गए और विदाउट चेकअप उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवा लिया। यू वॉन्ट बिलीव, वी सी सो मैनी केसेस जो पेशेंट पिछले 5-6 साल से मेडिसिन ले रहा था, वो प्योर रेक्टल कैंसर का केस था और सिर्फ 2 मिनट के चेकअप में आप उसको डायग्नोज कर सकते हो। ओके, एंड मैम पता कैसे चलता है, लाइक इफ अ फीमेल डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन होता है। Okay. वो आप किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको एग्जामिन करते हैं। Okay. तो जो नॉर्मल म्यूकोजा होती है किसी भी पेशेंट की, वो सारी डिस्टर्ब्ड होती है, तो आप जब चेक करते हो तभी पता चल जाता है। तो आप सिर्फ अगर इतना भी कर दोगे, बाकी वो आगे पेशेंट जाके इंस्टीट्यूट में अपना सारा ट्रीटमेंट करवा सकता है। बिकॉज अगर हम राइट टाइम पे किसी भी चीज़ को राइट डायग्नोज कर लेंगे तो ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल। एवरीथिंग इज अवेलेबल। यंग गर्ल्स बहुत मिल रही हैं अभी रिसेंटली, तो इवन आई वाज शॉक जब मैंने अपनी ओपीडी में देखा एक 18 इयर्स की गर्ल थी, उसका वेट रिड्यूस हो रहा था, उसको ब्लीडिंग थी, उसको पेन थी, लास्ट 2 इयर्स से वो किसी हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट ले रही थी। द मोमेंट शी केम आई चेक्ड एंड इट वाज प्योर रेक्टल कैंसर केस। तो अब 2 साल तो उसके निकल गए ना, वो नहीं वापस आ सकते। लेट्स होप। तो इसलिए इसके लिए अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके स्टूल में अगर ब्लड आ रहा है, अगर पेन आ रहा है, इट कुड बी पाइल्स, लेकिन फिर भी आप अपना एक चेकअप ज़रूर जरूर करवाना चाहिए। अगर आप राइट टाइम पे उसको डायग्नोज करा लोगे तो आप उसको ट्रीट कर सकते हो एब्सोल्युटली मैम, बिफोर गेटिंग इट टू लेट। yes. So ma'am, we got just so wonderful insights, sitting with you and interacting with you. So what is the last message that you want to give to our audience? लास्ट मैसेज तो ये है कि फीमेल का एक स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर चीज़ के लिए। तो अगर आप अपना ध्यान अच्छे से रखोगे तो ही आप किसी का ध्यान रख सकते हो। सब चीज़ों को पूरे दिन में 24 घंटे में अपने आप को 1 घंटे के लिए सिर्फ अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, सिर्फ अपने पे ध्यान दो। आप वो 1 घंटा अपने पे लगा लोगे, बाकी सब चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक कहा मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपने आज इतने अच्छे इंसाइट शीन शक्ति प्रोग्राम में शेयर किए।
हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ। वी आर रियली ऑब्लाइज्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।